किसी ने क्या खूब कहा है, तुम अपनी अंदर खूबियाँ ढूँढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर कदम रखना है आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर सपना देखना है ऊँचा देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं ना। अगर प्यार करना है खुद से कर, अगर प्यार करना है खुद से कर, नफ़रत के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अंदर जुनून का चिंगारी भड़का, तू अपनी अंदर जुनून का चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी पहचान बना, तू अपनी पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। बस तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। So my dear friends, in this video you will get for 6 fantastic PYQ questions from JEE Advanced 2017। आपका ड्यूटी बनता है इस सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, फिर लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. So my dear friends, JEE Advanced क्रैक करने का मूल मंत्र है, इसका ऊपर मैंने 1 मिनट का एक वीडियो बनाया। ये वीडियो को बार बार देखना, क्लियर, रेगुलरली देखना, इसका जो क्लियर थीम है उसे समझने का कोशिश करो, बस नथिंग एल्स। सो JEE एडवांस क्रैक करने का मेन मूल मंत्र है सब्जेक्ट को समझना, टॉपिक्स को समझना, बस नथिंग एल्स। Cracking JEE Advanced exams with a great confidence. Number 1. If you truly want to crack JEE Advanced, start by understanding concepts deeply, not just memorizing formula. Number 2. Every great rank begins with clarity in fundamentals. Number 3. Study each topic with patience, focus, and curiosity. Number 4. Discipline is the bridge between your dream and your result. Number 5. Consistency every single day is more powerful than occasional hard work. Number 6. Practice problems that challenge your thinking and logic. Number 7. Follow smart learning strategies, not just long study hours. Number 8. Learn from mistake because every error teaches a stronger concept. Number 9. Surround yourself with quality guidance, good resources, and positive motivation. Number 10. Remember it. Remember with deep understanding, discipline, consistency, and smart education. Cracking JEE Advanced becomes not just a dream but a planned achievement. So the very first question है clear. So box bracket ax with the greatest integer or less than equal to x. Then at which of the following points clear the functions fx equal to this x cos of y of x plus clear. So this is greatest integer of x is discontinuous. Point क्या क्या given है x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2 as well as x equal to minus 1. ठीक है, तो एक एक करके आपको चेक करना है. सो दैट इज व्हेन वी आर सपोज फर्स्ट वन एट x इक्वल टू 0. ठीक है, एट x इक्वल टू 0. सो दैट इज x टेंड्स टू 0 प्लस. सो दिस इज fx क्या होगा. सो दिस इज x cos ऑफ. ठीक है, 0 प्लस पे क्या होगा तो 0 होगा. सो दैट इज व्हाट cos ऑफ yx. सो दैट इज क्लियर. सो दिस इज 0. And so this is x tends to 0 minus. So this is fx equal to is what x cos of 0 minus. So this is y of x minus 1. ठीक है, at x equal to 0 पे 0 है. So this is continuous at x equal to 0. लेकिन आपको बताना है clear discontinuous. Suppose clear. So this is at x equal to, ठीक है, at x equal to suppose clear minus 1. Minus 1 क्या होगा. So x tends to minus 1 plus. ठीक है, सो दिस इज व्हाट. सो दिस इज fx इक्वल टू x cos ऑफ. ठीक है, माइनस 1 जैसा क्लियर माइनस 0.9. सो दैट इज क्या होगा वो तो माइनस 1 ही देगा. ठीक है, सो दिस इज ए माइनस 1 देगा. सो दिस इज x माइनस 1 एंड x का जगह पे क्लियर. सो दिस इज माइनस 1 पुट करो. सो व्हाट यू गेट. सो दिस इज माइनस 1 cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा. सो दिस इज व्हाट माइनस cos 2 है. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज सो नेक्स्ट ये क्या होगा देखो. ओहो, सो दिस इज नहीं. सो दिस इज पाई भी है ना. सो दिस इज पाई ऑफ एक्स इज माइनस 1. सो दिस इज व्हाट माइनस 2 है. क्लियर. सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. सो दिस इज व्हाट. सो दिस इज माइनस 1 बट हियर x टेंड्स टू माइनस 1 तो fx क्या होगा. सो दिस इज ये क्या देगा देखो. सो दिस इज x cos ऑफ. ठीक है, माइनस 1. सो दिस इज x माइनस 2 है. ठीक है, सो दिस इज पाई इंटू x माइनस 2 है. ठीक है, सो हियर वी विल गेट माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 पाई. सो दिस इज माइनस 1 एंड सो दिस इज minus 3 pi. ये भी तो minus 1. सो दैट इज 1. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस.
ठीक है, 8 क्लियर। अभी नंबर 3 में क्या है ना, सो दिस इज एट x इक्वल टू 1, सो दिस इज x टेंड्स टू 1 प्लस, सो दिस इज fx क्या होगा, सो दिस इज 1 प्लस x cos ऑफ, सो दिस इज पाई ऑफ x प्लस 1 प्लस में अभी x का जगह पे 1 रखो 2 पाई, सो दिस इज 1 and x tends to 1 minus, so this is fx क्या होगा, x cos of, so this is pi of 1 minus, 1 minus means क्या 0 है, so this is x clear plus 0 है, so that is अभी x के जगह पे 1 पुट कर दो, so it will get cos pi, so this is minus 1, so this is also discontinuous है, ये आपको समझना है, clear, so this is also discontinuous। अभी नंबर 4 में क्या है, so this is at x equal to, और कौन सा पॉइंट गिवन है 2, so this is x tends to 2 plus, x tends to 2 plus में क्या होगा, so this is x cos of 2 plus पे 2 देगा, so this is x plus 2 into pi, ठीक है, x का जगह पे 2 पुट करो, so that is 2 plus 2 4 pi, तो 1 देगा, so this is 2 है, and so जब ऐसा होगा x tends to 2 minus, so this is fx, x cos of 2 minus means 1 है, so this is x plus 1 है, x का जगह पे 2 पुट करो, so that is what minus 2 है, so my dear friends clear, in every case is clear, so that means here at x equal to 0 पे continuous है, at x equal to minus 1, at x equal to 1 as well as at x equal to 2 पे a discontinuous है, so my dear friends आपका जो आंसर है, so that is A, C and D है, this is your का जो सेकंड क्वेश्चन है, the sides of a right angle triangle are in AP, if the triangle has area 24 then what is the length of its smallest side, ठीक है, so my dear friends clear, so that means AP में है तो sides of this A and A plus D है, clear, so this is R in AP है, clear, इसका जो एरिया गिवन है, क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होगा, जो सबसे बड़ा है, सो दिस इज A प्लस डी, दिस इज A माइनस डी, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स एक कंडीशन होगा A स्क्वायर A माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू A प्लस डी का स्क्वायर, so that means is what a square plus a square minus 2ad plus d square equal to a square plus 2ad plus d square, ठीक है, d square cancel, a square cancel, so that means is what a square equal to 4ad, so this is a का वैल्यू क्या होगा ना 40। अभी another conditions is given, clear, इसका जो a is equal to 40, जब a 40 है, क्लियर, सो दैट मीन्स इस पर इसमें पुट कर दो 4d minus d, so this is 3d 4d and so this is 5d, ठीक है, क्लियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है, सो दैट इज 24, सो दिस इज हाफ, ए क्या है, ए तो 4d है and into a minus d, so that is 3d equal to 24 है, so that is what 12d square equal to 48 है, so this is d square, so that is equal to 4 है, so this is d का वैल्यू क्या होगा, क्लियर, d का वैल्यू यहीं पे लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो d का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू जब 2 है, क्लियर, सो इस पे पुट कर दो, सो हमें तो लेंथ ऑफ द साइड्स फाइंड करना था, जो स्मॉलेस्ट साइड है, लेंथ ऑफ द साइड क्या है, सो दिस इज 6 8 एंड 10 है, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इक्वल टू 6 है, ये आपको समझना है, स्मॉलेस्ट साइड इज 6, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्लियर, सो दैट इज फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इज इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस have exactly 3 common points, ठीक है, जो सर्कल गिवन है, क्लियर, सो जो सर्कल गिवन है, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इज इक्वल टू 0 है, ये जो इक्वेशन सब सर्कल है, क्लियर, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स, 3 कॉमन पॉइंट्स कब होगा, क्लियर, सो दिस इज, देखो यहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड सो दिस इज y प्लस 2 का होल स्क्वायर, p दिस इज 4 प्लस 1, सो दैट इज 5, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स इज व्हाट, एक बार देखो व्हेन इट टचेस द एक्स एक्सिस, जब टचेस द, क्लियर, ये जो सर्कल है जब टचेस द एक्स एक्सिस होगा तो उस टाइम क्या होगा, सो दिस इज, ठीक है, तो ये आपको देखना है, और एक बार कब होगा ना, सो दिस इज जब व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ठीक है, क्लियर, सो दैट टाइम क्या होगा ना, p का वैल्यू 0 है, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स ऐसा है, जब ऐसा एक सर्कल है, देखो, सो लाइक दिस टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है, सो लाइक दिस, इन दिस केस में क्या होगा, इसका जो सेंटर है, ठीक है, सो दैट मीन्स इज व्हाट, इसका सेंटर क्या होगा, देखो, क्लियर, सो दिस इज -1 एंड -2 है, क्लियर, एंड सो ये जो पॉइंट है, क्लियर, यहीं पे टचेस द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, क्लियर, ये जो पॉइंट है, सो दिस इज व्हाट
क्लियर. सो सपोज ए पॉइंट क्यू है, क्लियर इज, सो दिस इज -1 0 है, ठीक है. क्लियर. सो दैट मीन्स इसे टच कर पास करेगा, सो दैट इज -1 0, सो दैट इज p + 5 = 4, ठीक है. इसका पुट कर दो, सो इट विल गेट, सो दिस इज p का वैल्यू क्या होगा ना -1. और ये क्या है ना, जब ऐसा ग्राफ होगा, सो लाइक दिस, ठीक है. क्लियर. सो दैट मीन्स ए पॉइंट इस सर्कल का ऊपर होगा, ए पॉइंट जब सर्कल का ऊपर होगा, सो दिस इज ओरिजिन जब सर्कल का ऊपर होगा, 1 + 4 = p + 5, सो दैट इज व्हाट p का वैल्यू क्या है ना, सो दैट इज इक्वल टू 0 है. तुम्हें क्या बोला था, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, क्लियर, द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स, ठीक है. सो दैट मीन्स क्या, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, सो दैट मीन्स 2 वैल्यूज ऑफ p, 3, क्लियर. सो 2 वैल्यूज ऑफ p है. तो यार यहीं पे p का वैल्यू क्या है ना, एक वैल्यू 0 हुआ है और एक वैल्यू -1 है, ठीक है. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p, द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स, हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स, ठीक है. क्लियर इज, सो कितना वैल्यूज हुआ है ना, p का 2 वैल्यूज के लिए ये एग्जैक्टली क्लियर 3 कॉमन पॉइंट्स मिलेगा. Says, so that is for a real number alpha, if the system, clear, so this a system है, ठीक है. clear. So this is of linear equations has infinitely many solutions, then 1 + alpha square का वैल्यू क्या होगा, has infinitely many solutions, then इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चंस में. clear. So that means infinitely many solutions के लिए क्या होता है ना, d = 0, d1, d2, d3 all will be 0 है. So suppose this is d, ठीक है. d क्या है ना, so this is 1 alpha square, alpha 1 alpha square, so this is alpha. So this is 1 minus alpha square, minus alpha minus, so this is what, alpha cube, and so this is clear, this is alpha square minus alpha square, so like this, ठीक है. तो ये a, so this is d = 0 है, so this is equal to 0 है. So that is what, 1 minus alpha square plus alpha 4, and it is 0 है. So that means is what, so this is alpha 4 minus 2 alpha square plus 1 = 0. So this is alpha square = 1, so this is alpha = plus minus 1, ठीक है. अभी जब ऐसा होगा, जब अल्फा इज 1, ठीक है, एंड फॉर अल्फा = 1, तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस x + y + z, x + y + z = 1, and here x + y + z, x + y + z = -1, and so this is x + y + z, so that is equal to 1, ठीक है. क्लियर. सो ये तो पॉसिबल नहीं है, एक बार 1 एक बार -1 है, सो इट हैज नो सॉल्यूशंस, ठीक है. अभी फॉर अल्फा का वैल्यू जब -1 होगा, क्लियर. सो दिस इज 1 -1, सो दिस इज x - y + z = 1, एंड सो दिस इज -1 -x + y - z, सो दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है. सो अभी माइनस मल्टीप्लाई कर दो, x - y + z = 1, ठीक है, एंड सो दिस इज x - y + z = 1, ठीक है. क्लियर. सो दिस इज, सो दैट मीन्स क्या, इन दिस केस में क्या होगा, जब भी ऐसा सिचुएशंस होता है, ठीक है. क्लियर. ऑल आर, ठीक, विच ऑल आर सेम, जब ऐसा होगा सारे सेम होगा, सो ऑब्वियसली यू कैन से इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. जब ऐसा होगा, तुम्हें क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चंस में बोल रहा है जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, देन इसका वैल्यू क्या होगा. यानी अल्फा का वैल्यू -1 के लिए इनफाइनाइट माइनस, ठीक है. तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, सो दिस इज 1 - 1 + 1, सो दैट इज 1, तो इसका जो वैल्यू है, सो दैट इज 1. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, इसे समझने का कोशिश जरूर करना. फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. लेट x बी द नंबर, ठीक है. क्लियर. नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड. क्लियर. ऐसा 10 अल्फ़ाबेट है. क्लियर. सो दैट मीन्स क्या, तुम्हें क्या है, देखो यहीं पे x be the number of such letters, such words where no letter is repeated, and y be the number of such words where exactly one letter
is repeated twice and no other letter is repeated, then y by nx क्या होगा, y by clear. So this is तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड करना है, y by 9x is y. तो यहीं पे x 10 अल्फाबेट्स है, तुम्हें 10 अल्फाबेट से ऐसा लेटर बनाना है, ऐसा वर्ड बनाना है जिसपे कोई भी लेटर रिपीट ना हो, सो दैट नो ऑल आर डिस्टिंक्ट है. सो दैट मीन्स क्या, x का जो वैल्यू है 10 फैक्टोरियल है. अभी y के लिए क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू, तुम्हें ऐसा वर्ड बनाना है, क्लियर. सो वन लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस, क्लियर. आउट ऑफ 10 वन लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस, वन लेटर रिपीटेड है. सो दिस, ठीक है, कितना बार है, 2 बार है. सो दैट इज 9c2 है, क्लियर. सो दिस इज 9c2 इंटू, सो दिस इज 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 10c1, 10c1 तो 10 है, 9c2 9 इंटू 8 बाई 2 है, इंटू इज what 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 4, सो इट विल गेट, सो दिस इज क्लियर. सो इट विल गेट, सो दिस इज 90 इंटू 2 इंटू 10 फैक्टोरियल. ये इसका साथ इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्लियर. हमें क्या फाइंड करना है ना, y बाई 9x, ठीक है. y इज what 90 इंटू 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, एंड सो दिस इज ऑल्सो, ठीक है. This is, oh sorry, so this is what 9c8, ठीक है, 9c8. so that is what, so 9c8 means क्या, 9 है. so this is 90, so this is 90 into 10 factorial by 2 है. so this is y is equal to 90 into 10 factorial, so this is 10 factorial by 2, and so this is 9x into 10 factorial. ये इसका सब तो कैंसिल, ठीक है, क्लियर. सो दैट मीन्स क्या, 90 बाई 9 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू इज 5, सो दिस इज इक्वल टू 5 है. और एक बार समझ लो, क्लियर. एक से x क्या है ना, तुम्हें इतना वर्ड चाहिए जिसपे कोई भी लेटर रिपीटेड ना हो. सो दैट मीन्स क्या, इस पे क्या, कितने अल्फाबेट है, 10 अल्फाबेट है, इसीलिए 10 फैक्टोरियल. अभी y के लिए क्या बोल रहा है ना, y के लिए y बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स where exactly one letter is repeated twice, one letter is repeated twice, 10c1, ठीक है, क्लियर. सो 10c1 क्लियर ऐसा है, सपोज लाइक दिस, हमें 10 अल्फाबेट से ही चाहिए. सपोज दिस इज ए को मैंने रिपीट कर दिया, सो दिस इज और जो होगा बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच, सो दैट मीन्स इज व्हाट आई एन जे. तो यहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर. देखो यहीं पे तो 9 है, 9 से किसी 8 को कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए 9c8 है, ठीक है. अभी टोटल अल्फाबेट्स तो 10 है, क्लियर, 10 फैक्टोरियल है, और क्लियर ये 2 बार रिपीटेड है, इसीलिए 2 फैक्टोरियल. इसे आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है. बस उसके बाद तो उसको सिंपल कैलकुलेशंस कर दिया, बस नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर. ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने का कोशिश जरूर करना. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखो, if from R to R be a differentiable function such that if of 0 equal to 0, if of pi by 2 equal to 3, f dash 0, clear, f dash 0 equal to 1 and gx is equal to this, then we will find out limiting value of limit x tends to 0 gx क्या होगा, ये तुम्हें फाइंड करना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर. सब माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे ये जो क्वेश्चन है देखो, so this is x, this is pi by 2, and so this is d of dt, ठीक है. so this is f of t, so this is cosec t, ठीक है, क्लियर. so like this cosec t, so that is what dt. so जब तुम इसको डेरिवेटिव फाइंड करोगे, सो इंटीग्रेट करोगे, तो ये क्या होगा, सो दिस इज f of t cosec t, ठीक है, एंड लिमिट क्या है, x टू pi by 2 है. f of pi by 2, f of pi by 2, so that is 3, and a 3 है and minus, so this is fx by sin x. ए इसे तुम्हें समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है. बस इस पे आप पुट कर दो, सो दैट इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू 0, सो दैट इज 3 माइनस fx by sin x है, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज sin x है, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज व्हाट, ठीक है. बस यहीं पे क्या है, देखो, if of 0 तो 0 है, तो इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लो. सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस f डैश x एंड sin x क्या हो, सो दिस इज cos x. सो दैट इज व्हाट माइनस f डैश 0, cos 0 तो 1 है, f डैश 0 का वैल्यू क्या है, सो दैट इज व्हाट पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 3 माइनस, और इसको छोड़ देना है, सो दिस इज 3 माइनस दिस, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू 2 है, 3 माइनस f डैश 0, सो दैट इज इक्वल टू 2 है. इसे समझने का कोशिश करना, बस नथिंग एल्स.